Hi, good evening, beta. So in today's class, we are going to go ahead and we are going to discuss the assumptions of the classical linear regression model. Assumptions. Okay. Try to understand what are the assumptions of CLRM model. The first assumption is that the regression model is linear and correctly specified. We'll take it one by one. So we'll talk about linear first. So the regression model is linear, right? What do I mean by linearity? बेटा linearity का हमेशा मतलब होता है linear in parameter. इस बात को मैंने पहले के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है. We are always interested in checking that the parameters are linear in nature. माने yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2y plus ui. यहाँ पर ये जो बीटाज हैं हमें इनको चेक करना है that these betas should come linearly. This should be linear. So linear in parameter means that betas should be linear. We are not interested in x's. X non-linear भी हो सकता है. X can be x square. X can be log x. X can be 1 by x. X non-linear भी हो सकता है. But we want that betas should be linear. We also want that there should be additive error term. By additive error term, it means that the error term should be coming in addition. एरर टर्म हमेशा यहाँ पे एडिशन में आना चाहिए. इट शुड नॉट बी कमिंग इन मल्टीप्लीकेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ui इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2y इज इक्वल टू yi. दिस विल बी एन इनकरेक्ट मॉडल. ये एक गलत मॉडल हो जाएगा. The correct model will be that the error term should be coming in the additive format. मतलब वो add होना चाहिए in no other format. Then we also need that there should be no, it should be correctly specified. It should be correctly specified. Correctly specified का ये मतलब है that I should be going ahead and I should be writing in the right format. So when I say correctly specified, it means that if my model to be used is a y equal to beta 1 plus beta 2 x plus ui, अगर ये मॉडल सही मॉडल है जो मुझे यूज करना है तो यही यूज करना चाहिए. I should not be using a log मॉडल. तो वो मॉडल गलत हो जाएगा. So correctly specified means using the right form of the model. That is called as correctly specified model. Then, beta, the second assumption that we have is that the error term should have zero mean. Error term should have zero mean. तो हमें चाहिए that when I find out the mean of the error term, जब मैं error term का expected value निकालूं, when I find out the mean of the error term, the mean of the error term should be zero. देखो, try to understand. मैंने आपको ये बोला था कि सपोज दिस इज माय रिग्रेशन इक्वेशन. ये मेरी एक रिग्रेशन लाइन है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन. इट विल बी पॉसिबल दैट सम वैल्यूज विल बी अबव एंड सम वैल्यूज विल बी बिलो. ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर कोई एक्चुअल वैल्यू हो, यहाँ पर कोई एक्चुअल वैल्यू हो, तो सम वैल्यूज कैन बी अबव एंड सम वैल्यूज कैन बी बिलो. ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि ये है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू y हैट. सो इट इज पॉसिबल कि आपका जो एरर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक इन दिस केस, एंड इट इज पॉसिबल कि आपका एरर जो है वो नेगेटिव होगा, लाइक इन दिस केस. सो द एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो कुछ एरर्स पॉजिटिव हो गए, कुछ एरर्स नेगेटिव हो गए, बट ऑन एन एवरेज हमारा जो सम ऑफ द एरर टर्म्स होगा दैट शुड बी जीरो. The sum of the error term should be zero. So some errors will be positive, some errors will be negative, but the sum of the error term will be zero. ये बात समझे? Now let's talk about the third assumption, beta. The third assumption is that explanatory variable .
will be uncorrelated with error term. Explanatory variable will be uncorrelated with the error term. इसका क्या मतलब है बच्चे? It means that when I will be finding correlation between error and xi, जब मैं इन दोनों के बीच के रिलेशन को निकालूंगी, I should get 0. देखो, try to understand, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं, the correlation between the error term, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, तो वो हो जाता है covariance between them upon standard deviation of the error term, standard deviation of xi. This is the formula of correlation. तो इफ आई वॉन्ट कि xi और एरर इन दोनों में कोई भी रिलेशन ना हो, इनके बीच का कोरिलेशन 0 हो, इफ आई वॉन्ट दैट दे शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर, the correlation between them should be 0. तो when will the correlation be 0 बेटा? जब यहां का न्यूमरेटर 0 होगा. न्यूमरेटर क्या है? दिस इज कोवेरियंस. न्यूमरेटर को ही तो कोवेरियंस बोल रहे हैं. So we will go ahead and we will ensure that the covariance between the two is 0. This will make sure that we have 0 correlation. अगर covariance 0 होगा तो correlation भी 0 होगा. Correlation will also be 0. Right? Okay. Now, yes, beta, I am sorry. I was very busy with my own students who had enrolled for econometrics course. So I was taking their doubts and I was very busy with them. Right? And I had some master students whose entrance exam are coming. So sometimes it gives me less time to come on YouTube and do these courses. Right? Okay. The next is that the error terms are uncorrelated with each other. माने if I go ahead and I find out the correlation between two error terms, ui and uj, तो इनके बीच में कोरिलेशन 0 होगा. कोई दो एरर टर्म्स के बीच का जो कोरिलेशन होगा दैट विल बी 0. इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा, सपोज मैं आपको बोलूं कि ये मेरा रिग्रेशन लाइन है. राइट? अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर देखो, ये yi है, ये yi हैट है, दिस इज माय एरर टर्म, ये मेरा एरर टर्म है. यहाँ पे एरर टर्म पॉजिटिव है, बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि जब मैं नेक्स्ट yi निकालूं तो वहां पे एरर टर्म पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. राइट? सो जस्ट बिकॉज यहां पे एरर पॉजिटिव है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि नेक्स्ट टाइम एरर टर्म क्या होगा. सो एरर्स आर अनकोरिलेटेड विद ईच अदर. एक बारी एरर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट बारी एरर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द एरर टर्म्स नेक्स्ट टाइम? दैट विल नॉट बी अफेक्टेड. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. एक को दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम. ओके बेटा. Then the next assumption that we have, that is error term have constant variance. बेटा this property, इसको हम बोल देते हैं homoscedasticity. homoscedasticity. तो homoscedasticity का मतलब होता है, homo means same and skedastic means variance. तो homoscedasticity means बेटा same variance. homoscedasticity का मतलब हो गया same variance. तो हम ये बोल रहे हैं that the error term should have the same variance. माने अगर मैं इस एरर टर्म का वेरिएंस निकालूं और मैं इस एरर टर्म का वेरिएंस निकालूं और मैं ऊपर वाले एरर टर्म का वेरिएंस निकालूं, द वेरिएंस शुड बी द सेम. द वेरिएंस शुड बी द सेम. समझे बात को? देयर शुड बी. अच्छा, वेरिएंस क्या बताता है? व्हाट डज वेरिएंस टेल? वेरिएंस बताता है स्प्रेड.
ऑफ एरर टर्म्स, एरर टर्म अपनी मीन वैल्यू के मुकाबले कैसे स्प्रेड है। तो व्हेन आई फाइंड आउट द मीन ऑफ एरर टर्म, हमें पता है कि मीन तो एरर का जीरो आएगा, बिकॉज मीन वैल्यू इज समेशन ऑफ एरर टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 0/n दैट मीन्स जीरो। तो वी नो दैट द मीन ऑफ द एरर टर्म इज जीरो, ये बात हमें क्लियर है, वी नो मीन ऑफ द एरर टर्म इज जीरो। बट हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर इस मीन के अराउंड जो जीरो है, अगर मैं एरर्स का स्प्रेड देखूं कि एरर्स कैसे स्प्रेड आउट हुए हुए हैं एक एक्स की वैल्यू के लिए, और फिर मैं दूसरी एक्स की वैल्यू के लिए दोबारा उसका स्प्रेड देखूं, ये मैंने एक एक्स की वैल्यू के लिए उसका स्प्रेड देखा, एंड देन दूसरी एक्स की वैल्यू के लिए दोबारा मैंने देखा कि वो कैसे स्प्रेड है, तो ये स्प्रेड सेम होना चाहिए, दिस स्प्रेड शुड बी द सेम, दे शुड नॉट बी स्प्रेड डिफरेंटली। ऐसा ना हो कि जब मैंने इस एक्स के अराउंड एरर्स को प्लॉट करके स्प्रेड देखा तो दैट इज कमिंग वेरी डिफरेंट, वो ऐसा कुछ आ रहा है, और यहाँ पे स्प्रेड ऐसा कुछ आ रहा है, दैट शुड नॉट हैपन। जो एरर्स का स्प्रेड है, जिस तरीके से एरर्स फैले हुए हैं अराउंड देयर मीन वैल्यू, दैट शुड बी द सेम, वो सेम होना चाहिए, दैट शुड बी द सेम, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट assumption नंबर 6। assumption 6 बोलता है that there should be no multicollinearity, there should be no multicollinearity। बेटा multicollinearity का मतलब होता है रिलेशन बट अ लीनियर रिलेशन। जब हम लीनियर रिलेशनशिप चेक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीकोलिनियरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मॉडल लिखूं दैट yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui, बट यहीं पे ना मैं बोल दूं बेटा कि x3i ना कुछ नहीं है पर वो x2i प्लस 5 है, तो यहां पर वी हैव स्पेसिफाइड अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। हमने एक रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर दिया कि x3i कुछ नहीं है, x2i प्लस 5 है, बस x2i में 5 ऐड करते जाओ और x3i आ जाएगा। सो व्हेन वी हैव दिस लीनियर रिलेशनशिप, तो फिर हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल को रन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रन द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल। जो मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वन ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, उस मॉडल को वी कैन नॉट गो अहेड एंड रन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो हम वो मॉडल को क्यों नहीं रन कर सकते? बिकॉज देयर इज परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। तो वी वांट टू गो अहेड and we want to avoid the problem of multicollinearity। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली रिलेटेड हो, इन दैट केस वी कैन नॉट रन द OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, राइट। ओके बेटा, नेक्स्ट assumption आता है that the error term are normally distributed। error term are normally distributed माने if I just go ahead and I just check the distribution, normal distribution कैसा दिखता है बच्चे? बेल शेप्ड, बेल शेप्ड। तो अगर मैं अपने एरर टर्म्स को प्लॉट करूं, अलग अलग एरर टर्म्स को प्लॉट करूं, तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आएंगे, दे विल बी लुकिंग लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझे? अच्छा, now once we have studied these assumptions, बच्चे these are called as assumptions of ordinary least square, we will go ahead and we will talk about the properties। अब हम properties की बात करेंगे, properties of OLS estimators। तो OLS estimators की क्या properties हैं, अब एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। The first property is called as unbiased estimator। क्या बोल देते हैं हम पहली प्रॉपर्टी को? इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड एस्टिमेटर। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या बोलता है ना कि अगर हम बीटा हैट की वैल्यू निकालें, बीटा हैट कहां से आया था बेटा? वो आया था सैंपल से, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन से आया था बीटा हैट। अगर मैं ये बीटा हैट की वैल्यूज निकालूं और इनकी मैं एक्सपेक्टेशन ले लूं, if I go ahead and I find out the expected value of beta hat, तो it will be actually equal to the true value of beta hat। इसे बोला जाता है being unbiased।
अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, राइट? पहले मतलब समझो, देखो ध्यान से समझो। ये मेरा बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन मैंने सैंपल्स निकाले थे, तो ये मेरा सैंपल निकला, सैंपल 1। ठीक है, इस सैंपल में मैंने आपको एक्स का डेटा दिया होगा, कुछ वाई का डेटा दिया होगा। इसी पे आपने अपना फॉर्मूला लगाया होगा। फॉर्मूला याद है, b2 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर, b1 इज इक्वल टू वाई बार माइनस b2 एक्स बार, ऐसे करके हमने ये फॉर्मूला लगाया होगा। तो हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला, सैंपल पे हमने ये फॉर्मूलाज लगा के अपना b2 का वैल्यू निकाल लिया, या बीटा 2 हैट का वैल्यू निकाल लिया। दिस इज माई सैंपल बेटा, सैंपल से आ गया। ऐसे ही इसी पॉपुलेशन से मैंने एक और सैंपल निकाला, फिर से मैंने आपको कुछ एक्स दिए, मैंने कुछ वाई दिए, इसके बेसिस पे आपने दोबारा बीटा 2 हैट एक निकाला फॉर्मूला यूज करके। फिर मैंने आपको एक और सैंपल दिया, इससे फिर से इसमें एक्स की वैल्यूज दी, आपको वाई की वैल्यूज दी, आपने फिर से फॉर्मूला यूज किया समेशन एक्स आई वाई आई बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर, और यहां से ना आपने फिर से अपना बीटा 2 हैट निकाला। ऐसे करके आपने इसको बहुत बारी रिपीट किया। तो यू केप्ट ऑन फाइंडिंग आउट बीटा 2 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा 2 हैट, हर सैंपल का निकाला। अब अगर इन जितने भी सैंपल्स के आपने बीटा 2 हैट निकाले हैं, अगर हम इसका एवरेज ले लें, इसका अगर हम मीन निकाल लें, तो वो पॉपुलेशन के बीटा 2 के बराबर आएगा। इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। इस चीज को बोला जाता है बीइंग अनबाइस्ड। क्या बोल देते हैं इसको बच्चे? इट इज कॉल्ड एज बीइंग अनबाइस्ड। ये बात समझे बात को? तो जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि देखो मेरे पॉपुलेशन की जो वैल्यू है ना बीटा की, ये है, ये पॉपुलेशन की वैल्यू है, पॉपुलेशन की बीटा 2 की वैल्यू ये है। अब सैंपल 1 से जब हमने डेटा निकाला और उसको हमने अपना प्लॉट किया, तो सैंपल 1 का मीन यहीं पे पड़ा, सैंपल 1 का जो बीटा 2 हैट है वो यहीं पड़ा। तो हमने बोल दिया अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, जब सैंपल 1 का हमने मीन निकाला तो वो पॉपुलेशन के बराबर है। तो हमने बोला यस ये तो अनबायस्ड हो गया। फिर हमने सैंपल 2 का निकाला। अब सैंपल 2 का क्या हुआ ना, सैंपल 2 का भी यही आया, बट सैंपल 2 ने और बढ़िया काम करके दिखा दिया। सैंपल 2 का स्प्रेड कम था, सैंपल 2 का स्प्रेड कम था, देखो कम फैला हुआ है, द स्प्रेड इज लेस। तो सैंपल 2 में क्या हुआ ना कि ये भी अनबायस्ड तो था। क्यों अनबायस्ड था? क्योंकि देखो इसका मीन भी यही लाई कर रहा है, पीक पॉइंट देखो मीन यही लाई कर रहा है एक्चुअल वैल्यू पे पॉपुलेशन के, बट इसका वेरिएंस और कम हो गया, वेरिएंस लेस। और एक सैंपल था बहुत बेकार सैंपल था, सैंपल 3, क्योंकि इसका जो मीन है इट वाज लाइंग हियर, अरे मीन ही गलत निकाल रहा है वो, तो ये तो हो गया बायस्ड। ये बोल रहा है जी मीन वैल्यू ये है, जबकि एक्चुअली पॉपुलेशन की वैल्यू ये है, तो ये तो बायस्ड सैंपल हो गया। बायस्ड सैंपल में हमें कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बायस्ड सैंपल। बट जितने भी अनबायस्ड होंगे, जितने भी अनबायस्ड होंगे, जितने भी वो सारे होंगे जिनकी मीन वैल्यू एक्चुअली पॉपुलेशन के इक्वल ही होगी, उनमें से हम ये बोलते हैं कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हमें वो लाके देता है जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, मिनिमम वेरिएंस। समझ रहे हो बात को? वी कॉल इट एज वन विद द मिनिमम वेरिएंस। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, जो समेशन ई आई स्क्वायर को मिनिमम करता है, ये जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये नंबर 1 मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर देता है। मतलब अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो वो पॉपुलेशन के बराबर होगा, बट नंबर 2 वो जो वेरिएंस होता है उसको भी मिनिमाइज कर देता है। वो मतलब पॉपुलेशन के ज्यादा आसपास रहती है वैल्यू, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, इट इज मोर क्लोज टू द पॉपुलेशन, राइट? तो इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, उसका वेरिएंस भी कम है, तो इट इज अनबायस्ड, इट हैज मिनिमम वेरिएंस। तो इनको हम बोल देते हैं बीइंग ब्लू। क्या बोल देते हैं? बीइंग ब्लू। ब्लू का मतलब हो जाता है बेस्ट। लीनियर, लीनियर माने ये जो बीटास निकाले हैं हमने सैंपल के, ये लीनियर फंक्शन है वाई के।
तो बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब उनका वेरिएंस मिनिमम है। तो ये जो हमारे ओएलएस के एस्टिमेटर्स निकलते हैं, ये हो जाते हैं ब्लू इन नेचर। क्या हो जाते हैं? ब्लू इन नेचर। बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड, एफिशिएंट एस्टिमेटर। बेस्ट का मतलब ही अपने आप में ये है, आपको एफिशिएंट भी करने का जरूरत नहीं है। बेस्ट से ही आप समझ सकते हो कि एनी एस्टिमेटर इज बेस्ट इफ इट हैज मिनिमम वेरिएंस। अगर उसका वेरिएंस मिनिमम होगा तब ही वो बेस्ट कहलाएगा, ओनली देन इट विल बी बेस्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा कि ब्लू प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ब्लू इज अनबायस्ड, मिनिमम वेरिएंस एंड लीनियर फंक्शन ऑफ वाई। अब एक चीज यहां पर थोड़ी सी और मैं यहां पे लिखना चाहूंगी, जिसे हम बोल देते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या कहती है? ये कहती है कि जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन आ जाते हैं। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। इसे बोला जाता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते जाओगे ना, आप पॉपुलेशन की वैल्यू के और नजदीक आते जाओगे। यू विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉपुलेशन। माने सपोज पॉपुलेशन की वैल्यू ये है, तो ये सपोज हो गया एक छोटा सैंपल, सैंपल ऑफ 50। अब मैं सैंपल को बढ़ाऊंगी तो मैं पॉपुलेशन के और नजदीक आ जाऊंगी। तो व्हाट विल हैपन, आई विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ये देखो, गैप कम हो गया, पॉपुलेशन के और पास आ गए हो। सो ये हो गया सपोज सैंपल साइज 100। फिर मैंने सैंपल को और कम कर बढ़ा दिया, तो देखो मेरा स्प्रेड और कम हो गया। तो सपोज दिस इज सैंपल साइज 200। फिर मैंने और कम किया, तो सपोज ये हो गया, देखो स्प्रेड और कम हो गया, तो ये हो गया सैंपल ऑफ 300। तो एज यू विल इंक्रीज द सैंपल साइज, यू विल, आपकी जो वैल्यू है सैंपल की, वो पॉपुलेशन की वैल्यू को अप्रोच करेगी, और इसको हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। दिस इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कि हम जो ओएलएस के थ्रू अपने बीटास निकाल रहे हैं, ये लीनियर, अनबायस्ड, मिनिमम वेरिएंस और कंसिस्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारे ये बीटास निकलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर मैं इनको प्लॉट करूंगी तो इनका जो प्लॉट आएगा इट विल बी बेल शेप्ड। तो दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Okay, beta. So with this, I finish this lecture. I hope that this is useful to you. We have gone ahead and done the assumptions of classical linear regression model, and we have also gone ahead and done the properties of classical linear regression model.